Hello friends, today is our last session on dynamics. So this question was basically asked in this year UPSC, and this was a very interesting question because whenever a question comes in paper 1, especially from the dynamics statics portion, you generally get stuck whether you have to go through time equation or energy equation or with any other method, right? So जब भी कोई डायनेमिक्स का क्वेश्चन आता है या स्टैटिक्स का क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट यू शुड ट्राई टू put it in some category, right? What does it means by category or categorization of the problem? It means that first you should think that from which portion of the book this question has come, right? For example, in dynamics, question may be from the central forces, right? Question may be from the constraint motion. Similarly, question can be from the energy equation or energy balancing kind of questions, right? Why I am saying this कि जब एक बार ये पता हो जाता है कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक का है, then it becomes easy for us to adopt the method. ठीक है, तो we are not just blind then कि अगर वो क्वेश्चन सेंट्रल फोर्सेस का है तो there are only two fundamental equations, right? अगर वो constraint motion का है there are again two fundamental equations. ठीक है, similarly अगर वो क्वेश्चन एनर्जी इक्वेशंस का है, एनर्जी बैलेंसिंग का है, तो उसमें सिर्फ एक ही एक इक्वेशन होगी. ठीक है, नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई these two questions are very straightforward and you can easily identify whether the question is from the central forces or constant forces. This energy balancing वाला जो क्वेश्चन होते हैं they are sometimes hidden. एकदम डायरेक्टली क्लिक नहीं करता है कि दिस क्वेश्चन शुड बी द गिवन क्वेश्चन शुड बी सॉल्व बाय एनर्जी इक्वेशन और बाय सम अदर मेथड. ठीक है, तो मैं एक बात बताता हूं आपको कि जब भी किसी क्वेश्चन में देयर इज नो यूज ऑफ टाइम और टाइम इज नॉट इन्वॉल्व इन द क्वेश्चन एट ऑल, देन दैट क्वेश्चन शुड बी एंड आई वुड से मस्ट बी सॉल्व बाय एनर्जी इक्वेशन या एनर्जी बैलेंसिंग मेथड. ठीक है, जैसे in this particular question it says that a four-wheeled railway track has a total mass m. कोई एक फोर व्हील रेलवे ट्रैक है जिसका टोटल मास m है and the mass and radius of gyration of each pair of wheels and axle are m and k. I am writing down the given information. m is the total mass, राइट. सेकेंड, जो एक्सल का जो मास इज स्मॉल m एंड रेडियस ऑफ गायरेशन इज k एंड द रेडियस ऑफ ईच व्हील इज r. फोर्स अप्लाइड ऑन द जो भी है अपना ट्रक वगैरह दैट इज p एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, राइट. And the horizontal force, number one, we have to find out the acceleration, and secondly, the horizontal force on the जो उसका एक्सेल है उस पर कितना horizontal force रख रहा है, right? This is the given info, and these are the unknowns, or we are supposed to find these variables. So the question is like this. Let's say this is our vehicle, right? इसमें ऐसे करके two wheels हैं. Okay, this whole assembly has mass. This whole assembly has mass m, and it is being pulled by force p. ठीक है, इसमें कहीं पे भी टाइम तो इन्वॉल्व है नहीं, राइट. सो मैंने क्या किया था कि whenever there is no time, then there is a possibility that the question will be solved by energy balancing method. This is true for this question too. कैसे? Let's see. So suppose that कि P force लग रहा है after covering some distance x. its velocity is v. ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे इसका एनर्जी बैलेंस होएगा.
ठीक है। नाउ अगर फोर्स P लगा और x डिस्टेंस का इसको डिस्प्लेसमेंट दिया, इसका मतलब व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स P ऑन दिस होल सेटअप इक्वल टू क्या होगा, ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अल्टीमेटली इस फोर्स ने ही तो इस पे काम किया और उसने इस पे वर्क करने के लिए इसको x डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया, राइट। तो टोटल वर्क डन बाय दिस फोर्स इन डिस्प्लेसिंग दिस सेटअप बाय x डिस्टेंस इक्वल टू px, right? Now this px is a work done by p. अब ये वर्क का मैनिफेस्टेशन कैसे होगा? Due to this work, this setup will gain some energy, right? Px is the work done, and what will be the manifestation of this work? As a result of work done by p, this setup will get some kinetic energy plus some rotational energy in its some parts, right? So this px will be kinetic energy plus rotational energy plus ऐसा पॉसिबल है कि ये इस P की वजह से क्या पता इसमें कुछ हीट लॉसेस वगैरह भी होते, रेजिस्टेंसेस वगैरह, रेजिस्टेंस की वजह से भी लॉसेस होते, राइट, सम लॉसेस वगैरह, है ना, थर्मल लॉसेस हो सकता है, फ्रिक्शन लॉसेस हो सकता है, ऐसा करके दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन। बट इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन कि लॉसेस आर नेग्लेक्टेड, लॉसेस आर जीरो, तो वी वोंट कंसीडर दोस लॉसेस, राइट। सो px, now coming to the kinetic energy, we know that, or we have assumed that the velocity of this setup is v, right? So what will be kinetic energy? Half mv square, right? Now coming to the rotational energy. अब देखो, जब kinetic energy डिस्कस करना था इसका, तो हमने इसको रोटेशन को इग्नोर कर दिया, ठीक है। सिंपल वेलोसिटी देखा, मास देखा, एंड द एनर्जी बिकम्स हाफ mv स्क्वायर। नाउ अभी आपको उसको उस सिस्टम का रोटेशन एनर्जी देखना है, तो उसको ट्रांसलेशन पार्ट उसका जीरो कर दो, ठीक है, v जीरो कर दिया, तो अब वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, राइट। बट उसके जो व्हील्स हैं, दीज आर रोटेटिंग, राइट। हमने क्या किया, इसका v को जीरो एज्यूम कर लिया, बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट कि इसके पास कितना रोटेशन एनर्जी है, राइट। तो वी एज्यूम्ड कैट कि इसके ये तो खड़ा हो गया, बट उसके अलावा ये व्हील्स तो घूम भी रहे होंगे इनके एक्सेल्स वाले, ठीक है, और टू सेट हैं, ठीक है। व्हील वाला सेटअप कैसा होता है, ऐसा होता है, अगर ऊपर से देखो इसको, है ना, तो दो पेयर होते हैं, राइट, है ना, और इनके पास ही रोटेशन एनर्जी है, राइट, और टू सेट हैं, तो 2 इंटू एक सेट का एनर्जी, क्योंकि खड़े खड़े से रोटेट कर रहे हैं, तो इट विल बी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, राइट। आई कितना होगा, फॉर एनी जनरल क्वांटिटी या जनरल कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका आई इज गिवन बाय एम के स्क्वायर, एंड व्हाट इज द वेलोसिटी, ओमेगा, सॉरी, व्हाट इज ओमेगा, वी नो दैट दिस इज अ केस ऑफ नो स्लिपिंग, तो इसके पास भी v था, ठीक है, तो ओमेगा कितना हो गया, v था, एंड व्हाट इज v इक्वल टू ओमेगा इंटू r, where omega is the angular velocity, right? So omega can be written as v by r का whole of square, right? This will be our formula, ठीक है। So px equal to half mv square plus this get cancelled out, mk square in bracket v square by r square। अब वापस से याद करो, what are supposed to be found, acceleration, right? Here we are getting x and velocity, ठीक है। तो अब we know that after covering distance p was the force, it moved the object through a distance x and as a result it gained velocity, ठीक है। तो नॉर्मल जो न्यूटोनियन मोशन होती है, न्यूटोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, वो क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ एस, राइट। ये रिलेशन याद है ना सबको। तो यहां से यू कैन रिप्लेस एक्स विद
you can replace your v square with twice ax, right? तो previous इक्वेशन में ये v स्क्वायर था, ये v स्क्वायर था, right? I can write half m v square की in place of v square we will write ax and 2 भी था ना, there was factor of 2 v square equal to twice of ax, ठीक है, twice of ax plus small k m square twice of ax upon r square, ठीक है. Now this x will be cancelled and as a result only a will be unknown and finally you will get the value of a as, now just solve that previous expression and you will get a equal to p upon m plus twice of a square by r square m, ठीक है. This much of the problem is clear. कोई डिफिकल्टी? सीधे सिंपल रखना था क्वेश्चन को. P फोर्स था, फोर्स ने ऑब्जेक्ट को खींचा, एज ए रिजल्ट उस ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी आया, या फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी आया, डिस्प्लेसमेंट आया, ठीक है. उस वर्क को वी इक्वेटेड विद द काइनेटिक एनर्जी प्लस, और बेटर टू से ट्रांसलेशन एनर्जी प्लस रोटेशन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है. एंड फ्रॉम दैट we find out the acceleration. Now coming to the second part. Second part क्या बोल रहा है कि what is the horizontal force exerted on each axle by the truck. ठीक है. अब मैंने ऐसे पहले कहा था कि अपने पास ये if you see from the top ऐसे करके सेटअप रहता है, ऐसे करके सेटअप रहता है, ठीक है. तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन ये जो एक्सेल्स है ना, इस पे कितना फोर्स लग रहा है. व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्टेड ऑन ईच एक्सेल बाय द ट्रक, ठीक है. तो मान लो कि इस पे, अब जैसे कि हमने इक्वेशन बनाई थी पूरे उस कैपिटल एम वाले सेटअप को लेके कुछ बेसिक इक्वेशन बनाई थी, ऐसे ही हम इस छोटे वाले पार्ट पे एक्सेल पे फोर्स की इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है. मान लो ये फोर्स एफ है, तो जैसे पहले किया था वैसे इसमें भी करो कि इस फोर्स ने x डिस्टेंस तक इसको खींचा, उसके वजह से इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी आया, राइट, प्लस रोटेशन एनर्जी भी आया, बस खत्म हो गया क्वेश्चन. पुराने रिलेशन फिर से यूज हो जाएंगे क्योंकि x भी वही है, वेलोसिटी वही है क्योंकि उसी के सिस्टम का पार्ट है, और ओमेगा भी वही है, आई वही है. सारी वैल्यूज पुट करो एंड फाइंड आउट द आंसर, ठीक है. गॉट इट. एक्चुअली इस क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉब्लम उतना ही था कि कैसे आप वो पता करें कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है. एकदम ब्लैंक हो जाता है, व्हेनेवर क्वेश्चन कम्स यू बिकम ब्लैंक कि यार इसमें कौन सी क्या करें, मतलब फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, ठीक है. तो स्टार्टिंग के लिए मैंने बताया सबसे पहले आराम से काम माइंड से थिंक कि ये सेंट्रल फोर्स का है, नहीं, क्या कांस्टेंट मोशन का है, लगता तो नहीं, अच्छा एनर्जी बैलेंसिंग या इम्पल्स का है, इम्पल्स जैसी कोई बात नहीं, ठीक है. तो सिलेबस से जाओ. जैसे ही अगर एक बार ही आप स्कैन करते हुए पकड़ लिए ना कि यार एनर्जी बैलेंसिंग हो सकता है, तुरंत यूं क्वेश्चन होगा फिर, ठीक है. और दूसरा मैंने हिंट आपको दे ही दिया है कि व्हेनेवर द क्वेश्चन हैज नो टर्म इन्वॉल्विंग टाइम, तो देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी दैट द क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड बाय एनर्जी बैलेंस मेथड, ठीक है. तो अब चूंकि ये एक ही क्वेश्चन काफी था और आप लोगों का प्रीलिम्स भी आ रहा है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दिए हैं, ठीक है. सेकंड क्वेश्चन भी जो अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का ट्राई करिएगा. इनकेस कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैसेज करिएगा, ठीक है. एंड गाइस थोड़ा ट्राई करते रहिए. डायनेमिक्स के प्रॉब्लम्स थोड़े टफ होते हैं, बट आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वो प्रिडिक्टेबल भी होंगे, आपकी बुक से ही आएंगे, ठीक है. तो जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको ट्राई करो, और क्वेश्चन तो लगा ही है, साथ में ये भी समझने का ट्राई करिए कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई द मेथड टू बी यूज्ड इन दैट प्रॉब्लम, या कितने सारे नए कॉन्सेप्ट हैं क्वेश्चन में या पूरे सिलेबस में, तो उन कॉन्सेप्ट को पकड़ने में ज़्यादा ध्यान दीजिए,
ठीक है, और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतने ज़्यादा आप यूज टू होंगे वेरियस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक गाइज, कीप प्रैक्टिसिंग, राइट, बाय।